Good morning, dear students. Welcome to the physics class. Hopefully, you all guys must be fine. This is Afaz from Green Peace School. So, our today lecture is about the scales of thermometers, same as we have done in the previous lecture, but the structures will be different. जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर क्या होते हैं. हमारे पास तीन तरह के स्केल्स थे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर. हमने देखे थे कि हमारे पास तीन तरह के स्केल्स थे. वन इज डिग्री सेल्सियस, सो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज fine. So it is our degree Celsius scale. So next scale is Fahrenheit. In Fahrenheit, what is the freezing point and boiling point? So freezing point is 32 degree Fahrenheit, and what is the boiling point? 212 degree Fahrenheit. Fine. And in the third scale, Kelvin, what is the freezing point? 273 degree Kelvin. Fine. And boiling point is 373 degree Kelvin. Fine. So these things we have done in the previous class. कि हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस था इसका अलग फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखा था हमने, और फ़ारेनहाइट में अलग है एंड केल्विन में भी अलग है. So in the previous class we have done the formulas that how to change in Celsius, and if any one scale is given in Fahrenheit, so if how you need to change in Kelvin, how you need to change in Celsius. But today we will learn कि भाई वो जो फार्मूलाज है आप लोगों को उनकी ट्रिक कैसे पता चलेगी, किस तरह से आप वो फार्मूलाज बनाएंगे. सो टुडे वी विल सी दैट थिंग. देखिए, अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा था C डिग्री इक्वल्स टू 5/9 and F minus 32. This is the formula. Fine. This is the formula for degree Celsius which you have done in the previous class. और इसी की बेस पे मैंने आपको इसकी कन्वर्जन भी सिखाई थी कि अगर एक चीज़ आपको फ़ारेनहाइट में दी हुई होगी तो आपने डिग्री सेल्सियस में अगर उसको निकालना है, सो यू विल अप्लाई दिस फार्मूला. फाइन. सेम फॉर फ़ारेनहाइट इट वाज different formula, and for Kelvin different formula. So today we will see that how these formulas you will get. So the thing is that just you need to remember one trick. आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, that is scale name minus freezing point and boiling point minus freezing point. Fine. So this structure you need to remember. Just आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, then your life will be easy. आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद रहा. So that is scale name minus freezing point and upon boiling point minus freezing point. आप किसी भी चीज़ का इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं. Like अब मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से. Suppose we are taking of degree Celsius. Fine. So according to this structure, according to this formula, firstly we will write the scale name. So scale name is degree Celsius minus freezing point कितना है डिग्री सेल्सियस का? 0. Fine. According to this formula, minus freezing point. So we have written minus 0 degree. Fine. Upon उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Boiling point minus freezing point. So what is the boiling point of degree Celsius? 100. What is the boiling point in degree Celsius? 100. And what is the freezing point in degree Celsius? Minus 0 degree. Equals to same for Fahrenheit. What you will write? Scale name same. Scale name क्या है? F minus. So what is the freezing point of Fahrenheit? What is the freezing point? 32 degree, and upon boiling point minus
फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 212 माइनस 32। सेम फॉर केल्विन, केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, so it will be 373 minus 273 fine. So these all will be constant, ये क्या होंगे हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी सेम टेम्परेचर पे इसको चेक करवाने के लिए कि भाई लेट सपोज आप कोई भी एक वैल्यू ले लें, ठीक है, उन सब की आप सबको सॉल्व कर लें और सबका आंसर एक ही जैसा आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग यू विल गेट द फॉर्मूलाज। लेट सपोज आई वांट टू टेक आउट द फॉर्मूला ऑफ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मुझे किसका फॉर्मूला निकालना है, डिग्री सेल्सियस का, और किसके अकॉर्डिंग फ़ारेनहाइट के मुताबिक। अगर मैं उसको फ़ारेनहाइट से कंपेयर करूं तो मैं उसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करूंगा, हाउ आई विल फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर डिग्री सेल्सियस। सो आई विल कंपेयर दीज बोथ। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला निकालना है अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट, अगर हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन होगी, सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी वांट डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला, सो हाउ वी विल टेक आउट, हमें कैसे निकालना पड़ेगा। तो हम जस्ट इन दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। सो देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बनता है हमारे पास सी डिग्री माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। तो देखिए माइनस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, सो वी विल नॉट राइट माइनस 0, फाइन, इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, 212 माइनस 32। अब देखिए इसको आगे देख लेते हैं हम। सो नाउ इट विल बिकम c डिग्री अपॉन 100 इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 कितने होते हैं, ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे, आपका 180, फाइन, 0 विद कैंसिल विद 0 एंड 2 5s are 10 एंड 2 9s are 18। मैंने डायरेक्ट कैंसिल करवा दी यहाँ पे। आप लोग चाहें तो पहले इसको यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इन सबसे, मतलब ब्रैकेट आ जाएगी, साथ में ये 100 आ जाएगा और ऊपर से नीचे आप कैंसिल कर सकते हैं। बट आई कैंसिल डायरेक्टली फ्रॉम हेयर बिकॉज इन बिटवीन इक्वल साइन इज देयर, इक्वल साइन है तो आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। सो नाउ 5 इज गोइंग टू डिवाइड हेयर इट विल बी मल्टीप्लाई। सो c डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें 5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इन दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो आई कैन राइट 5 इंटू f माइनस 32 अपॉन 9, फाइन। सो मेरे ख्याल से मैंने c डिग्री का यही फॉर्मूला लिखवाया था आप लोग को, फाइन। मैंने c डिग्री का मतलब डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला यही लिखवाया था ना आप लोग को कि क्या होता है 5/9 f माइनस 32। सेम यू कैन फाइंड आउट फॉर फ़ारेनहाइट। अगर आप लोगों को फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला निकालना है वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे मैंने c डिग्री को निकालना था तो उसके साथ जो भी वैल्यूज़ है मैं उसको वहाँ ले गया, बट अगर फ़ारेनहाइट का निकालना हो तो इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उसको यहाँ पे ले आओगे, तो वो किसका निकल आएगा, फ़ारेनहाइट का। बस फ़र्क इतना है कि आपने वैल्यूज़ को इधर उधर रिप्लेस करके किसी भी जो आप, अगर आपने डिग्री सेल्सियस को निकालना है, सो यू विल जस्ट शिफ्ट these things which are near with डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस के साथ हैं उसको आपने यहाँ पे आके शिफ्ट कर देना है। जस्ट यू नीड टू शिफ्ट दोज थिंग्स विच यू आर टेकिंग द वैल्यूज़। यहाँ पे आप जिसकी भी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं उसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगी इक्वल के बाद। अगर यहाँ से लेट सपोज मुझे फ़ारेनहाइट निकालना होता, इफ़ आई वांट टू टेक द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट, सो जस्ट व्हाट आई नीड टू डू, इसको माइनस करते, इस ये 180 बचता, 180 को उधर ले जाते और ये माइनस का 32 है उधर जाके प्लस का 32 होता और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती, फ़ारेनहाइट की। सो फ्रॉम दीज थिंग्स यू कैन ईजिली फाइंड आउट द फॉर्मूलाज। सो इन वीडियो आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट इज़ योर असाइनमेंट। आपका असाइनमेंट क्या होगा कि आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ से देखें डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला निकाला है, किस पे इसको कंपेयर करके, फाइन।
So you need to find out the formula for Fahrenheit, formula for Kelvin according to all things. अब आपने पहले क्या करना है, देखें, अगर आपने डिग्री सेल्सियस और केल्विन को कन्वर्ट आपस में कंपेयर करेंगे अगर, तो या तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकाल पाएंगे केल्विन के अकॉर्डिंग, या फिर केल्विन की वैल्यू निकाल पाएंगे डिग्री सेल्सियस के मुताबिक। बल्कि एक मैं इसका भी पार्ट करवा देता हूँ आप लोग को। Let's suppose one value is given in Kelvin, fine, and we need to convert in degree Celsius, or one value is given in degree Celsius and we need to convert in Kelvin. So how we will change? तो मतलब अगर एक चीज़ केल्विन में दी हुई है और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो मतलब रिलेशन इन दोनों के दरमियान ही बनेगा ना। ये जो इसका है इसका कोई वास्ता भी नहीं होगा हमारे साथ, बिकॉज अगर वो एक चीज़ इसमें देगा केल्विन में और कहेगा डिग्री सेल्सियस में फाइंड करो, तो हमारा इन दोनों से ताल्लुक होगा, सिर्फ हमने इसको बीच में नहीं घसीटना। और अगर वो कहेगा एक चीज़ केल्विन में दी हुई है उसको आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो जस्ट हम इन दोनों को लेंगे जिसमें केल्विन और फ़ारेनहाइट है। वी डोंट हैव एन इंटरेक्शन विद डिग्री सेल्सियस। जिन दोनों की वो बात करे आपने सिर्फ उन दो को लेना है। अब देखिए मैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इन दोनों को ही कंपेयर करूँगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो सी डिग्री -0 अपॉन 100 - 0, सेम K - 273 अपॉन 373 - 273, फाइन। सो C डिग्री -0, 0 we cannot write, so obviously we will write C upon 100 equals to K - 273 upon 373 - 273। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें आपने अगर केल्विन निकालना है तो जाहिर सी बात है केल्विन को फ्री करना पड़ेगा आपको। एंड हाउ केल्विन विल बी फ्री, केल्विन को कैसे फ्री करेंगे, तो उसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ है उसको बारी बारी यहाँ शिफ्ट करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। C upon 100 इक्वल्स टू K - 273 अपॉन 373 - 273 विल बी 100, फाइन। अगर आज से ये माइनस करते तो क्या बचता है, 100 बचता है, एंड 100 विल कैंसिल विद 100, सो व्हाट इट विल बी, C डिग्री इक्वल्स टू K - 273। अगर हमें K की वैल्यू चाहिए तो हम -273 को यहाँ पे ले आएंगे, और अगर हमें यहाँ से C मतलब डिग्री सेल्सियस चाहिए तो उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है हमें, मतलब C डिग्री की तो ऑलरेडी फाइंड आउट है ना, K - 273। But if we want to take out the value of Kelvin from here, so just we need to shift -273 over here. So it will be C plus 273, because here it is minus, after equal sign it will be plus. So it will be the value of Kelvin. तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, केल्विन की। क्या है, C + 273। इसको सीधा करके लिख देते हैं, K इक्वल्स टू C डिग्री + 273। सो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द फॉर्मूलाज। अब देखिए मैंने डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन आपस में बना लिया। क्या रिलेशन बना कि अगर हमें एक वैल्यू डिग्री सेल्सियस में गिवन है, सो हाउ वी विल कन्वर्ट इन केल्विन, सो यू नीड टू कंपेयर दीज बोथ। लाइक अगर आपको एक चीज़ फ़ारेनहाइट में गिवन है और आपको कहा जा रहा है यहाँ पे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सो बिकॉज मैंने जिन दो चीज़ों का नाम लिया आपने उन दो चीज़ों को ही कंपेयर करना है, फाइन। मैंने क्या बोला, अगर एक चीज़ फ़ारेनहाइट में दी हुई है और आपको उसको कन्वर्ट करना है इन केल्विन, सो जस्ट यू विल कंपेयर दीज बोथ थिंग्स, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सो आई विल कंपेयर दीज बोथ, बिकॉज मैंने क्या बोला, फ़ारेनहाइट में दी हुई है केल्विन में कन्वर्ट करना है, या केल्विन में दी हुई है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। नाम तो इन दोनों का ही ले रहा हूँ ना, तो सो वी विल यूज द रिलेशन ऑफ दीज टू, फाइन। हम सिर्फ इन दो का ही रिलेशन यूज करेंगे। और अगर मैं कह रहा हूँ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस इफ द वैल्यू इज गिवन इन फ़ारेनहाइट, सो आई विल कंपेयर दीज बोथ। इफ आई विल से दैट if one value is given in degree Celsius, I need to find out in Kelvin, हमें किस में चाहिए, वो केल्विन में चाहिए, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करके
निकाल सकता हूँ. फाइन. सो these all things are very important. So now what is your task? आप लोग का टास्क क्या है कि आप लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पे C डिग्री का फॉर्मूला बनाया था अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट, एंड आई मेड दिस फॉर्मूला एज पर फॉर केल्विन अकॉर्डिंग टू द डिग्री सेल्सियस. मैंने यहाँ पे केल्विन का भी फॉर्मूला बनाया और डिग्री सेल्सियस का भी. सो नाउ यू नीड टू व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड आउट द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द डिग्री सेल्सियस. आपने फ़ारेनहाइट का निकालना है, केल्विन का निकालना है फ़ारेनहाइट के रिलेटेड, फिर फ़ारेनहाइट का निकालना है केल्विन से रिलेटेड. मतलब जितनी भी बाकी की रेशोज़ बची हैं वो आप लोगों ने खुद से फाइंड आउट करनी है. सो दिस इज़ योर टास्क एंड दिस इज़ योर असाइनमेंट. And homework, what you need to do, homework already I think you have done in the previous class. I already given you, just you need to do the assignment and I will write in the PDF as well that what you need to do. So hopefully all points you have understood. No problem is there. If any problem is there, so you can ask in the comment as well. I will explain anytime. So inshallah see you in the next lecture. Till then, wish you all the very best and thank you.